Good morning, everyone. Welcome Good in my today's morning. lecture. Today we are going to be learn about the inductive effect. As I told you in the last lecture, inductive effect is very much important effect when we are going to understand the structure of the molecule, polarity in the molecule, then reactivity of the molecule. So this inductive effect is very much important because this is the permanent effect. And we know that there are heterodiatomic molecule is there, so it having a different atomic number, different electronegativity, and their different property. But basically electronegativity is very much important to explain the inductive effect. Electronegativity is the ability of the atom to attract the electron toward itself from the sigma covalent bond. As we seeing in this picture, there are 3 carbon on the one side, and on the second side there is a halogen. As we know that the halogen is a more electronegative atom as compared to the carbon. So that's why halogen having a more ability to attract the electron toward itself rather than the carbon. So that's why we know that if there is a bond in between to A and B, and if bond is A and A, so this is the same type of atom. So that's why this bonding electron present in the center of this bond. But if there is a different type of atom, A and B, so these A and B are different, their atomic number is different, their electronegativity is different. So this bonding electron is not staying at the center. Okay, because one of the atom from these two, one is more electronegative. That means their ability to attract the electron toward itself is more as compared to A. Since B is more electronegative than A, that means the B is more able to attract the electron toward itself. And that's why this bonding electron is shifting toward the center of B, because B is more electronegative, because it's having more ability to attract the electron toward itself. That means the bonding electron is near to the B nuclei. That means on this side there is a more electron density. So this is the del negative portion of the molecule, and there is a less electron density. So this is the positive pole of the molecule. Okay, so in this way A and B is a different atom, and in with that this different pole we can found up to this bond is present in between to A and B. तो ये जो A और B के बीच में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन B के तरफ है, यानी कि B के न्यूक्लियाई के पास है कि नहीं? तो इस तरह से इसमें दो पोल बन रहे हैं, एक डेल नेगेटिव पोल बन रहा है और डेल पॉजिटिव पोल बन रहा है. इसका मीनिंग होता है कि इसमें पोलर नेचर क्रिएट हो गया. ठीक है, अब ये जो पोलर नेचर जो होते हैं, ये शिफ्टिंग जो हुआ है इस इलेक्ट्रॉन का ये सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड में, इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. Electron shifting toward the more electronegative atom in the bond, or sigma bonded electron shifting toward the more electronegative atom is known as to be inductive effect. है ना, मतलब सिग्मा बॉन्ड में से जो दो एटम जो है ए और बी, इसमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे. इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. सो दिस इज द परमानेंट इफेक्ट. ये जो है ये परमानेंट इफेक्ट है, बिकॉज जब तक ये मॉलिक्यूल होता है तब तक इसमें ये जो इफेक्ट होता है ये देखने को मिलता है. ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा, व्हेन दिस मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन, सो दिस मॉलिक्यूल प्रोड्यूस डिफरेंट आयन, positive and negative ion it produce. When this molecule is break down, that means this inductive effect is finished. Okay, but until the presence of double bond in until the presence of bond in between to A and B, so this inductive effect is remain, वहां पे हमें देखने को मिलता है. So that's why this is the permanent effect. जब तक वो molecule है तब तक हमें उसमें ये जो inductive effect है वो देखने को मिलता है. तो इसे हम permanent effect कहेंगे. So basically there are two type of inductive effect, positive inductive effect and negative inductive effect. As I told you in the last lecture, there are two type of inductive effect, plus I effect यानी कि positive inductive effect, और second जो है वो negative inductive effect. ओके, अब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये कौन शो करेगा?
तो इस मॉलिक्यूल में ए और बी में वी कैन सी हियर दिस ए इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है, तो इस वजह से डेल पॉजिटिव सेंटर इस साइड में बन रहा है। दैट मींस इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इट शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। ये जो है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पुश कर रहा है। तो इस वजह से ये जो एटम होगा ए, इट शोज प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो है ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा। सेकंड जो है माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होती है, इट पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ये क्या करेगा, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो इस वजह से ये भी एक इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, वो होता है माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस तरह से दो इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पे जो है कि इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही मूव होते हुए हमें दिखाई देते हैं, यानी कि सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वही इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और इसमें जो है ये परमानेंट इफेक्ट होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो होता है जिसमें कि इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, दिस मॉलिक्यूल बिकम टू बी पोलर इन नेचर, है ना। उसमें पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होता है यानी कि क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के पोल वहां पे हमें बनते हुए दिखते हैं, है कि नहीं। So this is called as a polar molecule. So it classified, as I told you, this inductive effect is classified in two types. One is plus effect, plus I effect, to attract the sigma bonded electron. यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है, हम HX जो मॉलिक्यूल है, H यानी कि हाइड्रोजन और X यानी कि हेलोजन होता है, इसमें हमने फ्लोरीन लिया, ठीक है। सो हमें पता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसकी वो होती है 3.98, ये एग्जैक्ट है, और कुछ बुक में ये नियरली 4 भी दिखाते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ओके। और हाइड्रोजन जो होता है इसकी होती है 2.2 की, है कि नहीं, मतलब बहुत ही कम होती है 2.2 की, और ये है 4 की। So this is very electronegativity difference in between two hydrogen and fluorine. Okay, so now these two atoms are different electronegativity and their ability to attract electron toward itself is also different. Okay, so fluorine is a more electronegative atom, so it's able to pull the electron toward itself from this HF sigma covalent bond, है ना। ये जो बॉन्ड है HF में से, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि इसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें जो है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये खुद की तरफ उसको ज्यादा स्ट्रांगली खींच लेगा, है ना। तो इस वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन के सेंटर के करीब रहेंगे, ठीक है। और सेकंड जो है ये जो है यहाँ पे ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये फ्लोरीन की तरफ पुश कर देगा, है ना, ये इसको पुश कर देगा फ्लोरीन की तरफ, ठीक है। तो ये चीज होने की वजह से बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन सी हियर इन दिस मॉलिक्यूल वन पोर्शन, एक जो ऐसा पोर्शन है इन विच दैट वी कैन सी देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज देयर, मींस इन दिस रीजन देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी and on the other side, means this side, there is a less electron density. Okay, so we can say there is a del positive charge on the hydrogen side and del negative charge on the fluorine side because of more electronegativity and more electron density. So what happen in this sigma covalent bonded electron pull toward the fluorine, attract toward the fluorine more, so it shows minus I effect. It shows the minus I effect. This is minus I effect is there to push away sigma bonded electron by less, है ना। मतलब ये जो है फ्लोरीन की तरफ ये ज्यादा खींच लेगा, तो इससे हम माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे कहेंगे। और हाइड्रोजन डोनेट और ये पुश द इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को इस फ्लोरीन की तरफ, तो इसको हम कहेंगे कि इसने प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो किया है। So it gives plus I inductive effect hydrogen atom in this HF molecule and minus I effect shown by fluorine atom in HF molecule. Okay, and another example is HCl.
or any other molecule is there, is a different type of electronegativity atom in a bond, so it shows the inductive effect. Always we can see everywhere if there is a different electronegative atom and there is a sigma bond. Hello, 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 hello. Yes, sir. ओके ओके, सो तो समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप लोगों को सुनाई दे रही है आवाज मेरी? Yes. हेलो, okay, so this is the inductive effect and permanent effect, and because of the inductive effect we can see there is a polarization in the molecule. So next one is the application of this inductive effect. If we are going to explain the acidity of the acidic group, so it is very important role played by the inductive effect to explain their acidity. Okay, because as we know that the inductive effect is more so electronegative atom, it pulls the electron toward itself from the sigma covalent bond. So as we know that the acidity of the carboxylic acid, so simply there is an acidic group C double bond O and OH. This is the acidic functional group, and we can see there is a CH3. This is a basic molecule of, this is the basic molecule, that is the acetic acid. And we know that this is the acid molecule because it gives the H positive. ये जो है, after the ionization it gives H positive. This OH bond is break down, and due to that it gives one H positive ion, and second one is here the carbonyl double bond along with this oxygen having the negative charge. So this is the, there an ion is there. Okay, acetate is there, and second part is of the ion of this acid is H positive. Okay, so this is very simple, and if this molecule gives this H positive, so this is called as acid. But their acid H positive giving ability of the this carboxylic acid is depend upon the inductive effect. Means inductive effect interfere in the acidity of the carboxylic acid, and we are going to be find out, we are going to be understand how this acidity of carboxylic acid is vary along with their inductive effect. So this is very simple. If you know that this oxygen is a more electronegative atom than hydrogen, so this is more electronegative, and that's why there is a del negative charge on this side and del positive charge on this side. Okay, but what happen when this bond is break down and H positive is given? H positive यहाँ से जब मिलेगा हमें बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, तो हमें इस तरह से जो मॉलिक्यूल मिलता है, इस मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज, तो ये जो है ये निगेटिव चार्ज अगर स्टेबलाइज होता है और इसका डिलोकलाइजेशन होता है, ये निगेटिव चार्ज ये स्टेबल हो जाएगा, तब जाके ये H पॉजिटिव देना इसको इजी होता है. ठीक है ना? तो ये जो होता है इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी इस पे डिपेंड होता है. तो इसकी स्टेबिलिटी जो होती है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे वर्क करता है. तो किस तरह से वर्क करता है देखो. अब ये जो मॉलिक्यूल हम यहाँ पे देखते हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब बेसिक है ना. यहाँ पे जो है इस साइड में हम देखते हैं कि CH3 मॉलिक्यूल है, CH3. ओके, और इस साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लोरीन. ओके, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन है, ब्रोमो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड एंड फ्लोरो एसिटिक एसिड. ओके, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ से जो है H डिपार्ट हो जाएगा और हमें इस तरह से जो अनायन मिलता है ये मिलेगा, और इसे हम कहेंगे कि ये एसिड है. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज बेसिक. ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे अगर हैलोजन होता है तो इसकी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे अटैच होता है इस कार्बन को, तो इसकी जो एसिडिटी है ये किस तरह से वेरी होगी,
और ये भी देखेंगे कि यहाँ पे अगर इस तरह के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां पे आते हैं तो वहां पे किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगा और वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एसिडिटी में इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो H पॉजिटिव देने वाला है, तो यहाँ का जो कार्बन होता है ये वाला कार्बन, ठीक है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी स्टेबिलिटी किस तरह से होती है। तो क्या होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे होता है ये सिंगल बॉन्ड और वहां पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये CH3 ग्रुप जो है, ये CH3 ग्रुप जो होता है ये शो करता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। क्या शो करता है? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई। अब क्यों प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है कोई भी अल्किल ग्रुप, ये देख लेना है हमें। अब अगर हम इस कार्बन को देखते हैं तो ये होता है S, और ये भी कार्बन, दोनों एक जैसे ही कार्बन है कि नहीं, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। बट जो है इसमें से जो एक कार्बन जो होता है ये वाला, ये है sp3 हाइब्रिडाइज, है ना। ये भले ही दो एक जैसे कार्बन है, बस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ये हम देखेंगे कि क्यों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और किस तरह से ये स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। तो ये जो है ये वाला कार्बन अगर हम देखते हैं सेकेंड वाला, सो दिस इज द sp2 कार्बन। ठीक है, तो ये वाला कार्बन जो है sp2 है, ये वाला कार्बन sp3 है। और इसमें अगर s कैरेक्टर हम देखते हैं तो sp3 में जो है ये 25% s कैरेक्टर होते हैं, और ये जो sp2 होता है इसमें 33% s कैरेक्टर होते हैं, है ना, 33.33। तो ये जो है एस कैरेक्टर, और जितने ज्यादा एस कैरेक्टर इसमें हमें देखने को मिलेंगे उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे ज्यादा होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज ऑफ एस कैरेक्टर। तो एस जो ऑर्बिट होती है ये न्यूक्लियाई के ज्यादा करीब होती है, 0.52 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इतनी करीब होती है, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज होती है न्यूक्लियाई के। तो इस वजह से वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। एस ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल जो होती है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियाई के साथ, तो वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा ही होगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं इफ देयर इज अ मोर एस कैरेक्टर सो दिस कार्बन बिकम टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ से हमें समझता है कि ये वाला कार्बन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस कार्बन। ओके, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों भी एक जैसे ही कार्बन है ना, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ये वाला। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये CC बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाते हैं इस कार्बन की तरफ। एक चीज समझ में आ गई, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये वाला ये जो मिथिल ग्रुप है यहाँ पे दिख रहा है, तो ये डोनेट कर रहा है, यानी कि पुश कर रहा है इस कार्बन की तरफ। तो ये जो है ये शोज द प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, then on the second side is there oxygen negative charge, and this negative charge is tried to stable by the delocalization, है ना, मतलब घूमेगा ही इधर अलग अलग सेंटर पे, तो इसको थोड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलेंगी। तो ये जो है नेगेटिव चार्ज ये डिलोकलाइज होता है ये वाले कार्बन के साथ में। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ओपन अप हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ, और कार्बन से फिर ये सेकेंड ऑक्सीजन की तरफ, और फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज ये 3 सेंटर में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इस वजह से इसको स्टेबिलिटी आ रही है। बट क्या होता है, ये जो मिथिल ग्रुप है ये खुद इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, तो इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर था इस कार्बन का अब ये कम होता जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये कम होगी, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी सोचेगा, है कि नहीं। इसको डिफिकल्टी होगी यहाँ पे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये इस साइड में उसको डिलोकलाइजेशन के लिए अलाउ करे, है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ड्यू टू द प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस मिथिल ग्रुप इट डिफिकल्ट टू
it create the difficulty for the delocalization of this negative charge in this carbonyl group. So that's why it become to be weak acidic in nature. ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। अब सेकंड चीज क्या होती है इसमें, अगर इस मिथिल ग्रुप को कोई हैलोजन ग्रुप अटैच है ना, मतलब ये अगर यहाँ पे ये CH2 है और यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई एक हैलोजन है, ठीक है, हैलोजन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि हम हैलोजन फैमिली से देखते हैं, कोई भी ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अब ये X यहाँ पे अटैच होने की वजह से, ये वाले X की वजह से, ये जो X है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, है ना, इस कार्बन से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो CX बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये जाएंगे इस X की तरफ, मतलब ये जो CH2 ग्रुप है अब इस X की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा शिफ्ट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस X की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब X की तरफ शिफ्ट करने की वजह से ये जो है ये वाला कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन रहेगी या थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस X, है ना। तो X जो है यहाँ पे ये -I इफेक्ट शो करता है, और -I इफेक्ट की वजह से ये जो CX बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस CX बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस X की तरफ जाएंगे, तो ये जो CH2 ग्रुप +I इंडक्टिव शो कर रहा था और इसके इलेक्ट्रॉन जो है ये इस कार्बन को दे रहा था, ये चीज यहाँ पे नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का, तो ये पॉसिबल होता है, मतलब ये यहाँ पे X होना ये सपोर्टिंग होता है कि यहाँ पे इसका डिलोकलाइजेशन हो जाए, ठीक है। अब ये डिलोकलाइजेशन की वजह से इसको स्टेबिलिटी आती है, तो इसको H पॉजिटिव आयन देने में कोई यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब ये जो है ये अच्छे से एसिड एक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो X है, X का नेचर किस तरह से होगा, मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस तरह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे वेरी होगी उस तरह से इसकी एसिडिक नेचर। हेलो, आई एम ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन सकते हो? यस 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 सर। हाँ यस, आवाज आ रही है Yes, सबको? sir. स्क्रीन दिख रही है? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ समझ रहा है? यस सर। ओके, तो हम यहाँ थे कि जो ये X यहाँ पे जो होगा, अगर जिस तरह से X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैरी हो जाएगी उस तरह से, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जिस तरह से इसका बढ़ता जाएगा उस तरह से इसका एसिडिटी जो है, एसिडिक नेचर जो है ये भी वैरी होता जाएगा, ठीक है। तो X जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी इसकी होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक उसका नेचर जो है ये शो करेगा, और जितनी कम होगी, यहाँ पे X ही नहीं होगा तो इसकी एसिडिटी जो है ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस जो कंपैरिजन में जो हम साइड में देख रहे हैं इसमें यही दिखाया है कि ये जो बेसिक है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी एसिडिटी जो भी है वो है, क्योंकि ये रेफरेंस है ना, और इसको अटैच होके अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरह का अगर वहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो इसकी एसिडिक नेचर जो है, एसिडिटी जिसे कहेंगे वो बढ़ेगी यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये बहुत अच्छे से H पॉजिटिव देगा एज कंपेयर टू दिस ग्रुप, ओके। तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है कि एसिडिटी ऑफ द ब्रोमो एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन एसिडिक एसिड, ठीक है। अब इसमें जो है क्लोरीन है, अगर यहाँ पे क्लोरीन होता है तो ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है कि नहीं। तो क्लोरीन की केस में ये ज्यादा ये एसिडिक होगा एज कंपेयर टू ब्रोमो एसिडिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और फ्लोरीन अगर वहां पे होता है 4 उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और 3.9 भी होती है, तो 3.98 होती है एग्जैक्टली। तो ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है इन द पीरियोडिक टेबल। तो
ये तो बहुत स्ट्रांगली माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इस वजह से ये जो है पूरा एसिड ग्रुप यहाँ से H पॉजिटिव इजीली दे सकता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि फ्लोरोएसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू बी फ्लोरो, ब्रोमो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस तरह से जो है इसकी एसिडिटी जो है ये वैरी होती है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये जो पीके वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी वहां पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि फ्लोरो जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाला 2.65 उसकी पीके वैल्यू है, मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक इन नेचर होती है कि नहीं। तो ये है सबसे ज्यादा एसिडिक। तो हमने क्या किया कि इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे एसिडिटी जो है उसको हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये होती है। देन और एक इसका एप्लीकेशन हम देख सकते हैं कि जब कार्बोकैटायन होता है यहाँ पे, ठीक है, ये आगे कुछ स्लाइड में हम स्टडी करेंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, जैसे ही हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का एटम से दूर जाते जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होता हमें वहां पे देखने को मिलता है। देखो अब ये जो CX बॉन्ड हम यहाँ देख रहे हैं, इस CX बॉन्ड में X जो है हैलोजन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो ये जो है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस हैलोजन की तरफ। तो हम कहेंगे कि ये जो है हैलोजन ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ये जो कार्बन है ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है ना। पर सेम इफेक्ट ये सेकंड वाले कार्बन पे भी रहता है, बट यहाँ का जो उसकी वैल्यूज होती है इंडक्टिव इफेक्ट की, जो इफेक्ट होता है वो कम होता है। इससे आगे जाएंगे तो और कम होगा, यहाँ पे हम 3 पॉजिटिव देंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये बहुत कम होता होता ऐसे आगे देखने को हमें मिलता है। तो जो डायरेक्टली अटैच होता है टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ की जो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, तो ये वाला जो होता है, मैम प्लीज 2 मिनट, तो ये बॉन्ड की वजह से ये जो है इसमें हमें ज्यादा पोलैरिटी देखने को मिलती है और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। द सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है, दिस इज द टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अब नॉन पोलर यानी कि क्या, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल ना हो। ठीक है ना, उसके लिए एग्जांपल हमें पता है कि अल्कीन मॉलिक्यूल है ना, ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, 2 कार्बन बट डबल बॉन्ड होते हैं वहां पे, तो ये होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल है, दोनों भी कार्बन एक जैसे होने की वजह से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये हुआ नॉन पोलर। अगर चार्ज होते हैं तो उसे हम पोलर कहेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकता है तो उसको हम पोलर कह सकते हैं। बट वहां पे अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो वो नॉन पोलर होगा, जैसे कि अल्कीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल में कोई पोलैरिटी नहीं है, बट यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट होती है जब हम इसके साथ में रिएक्शन करते हैं। क्योंकि इसको अगर ब्रेक डाउन करना है, इसको तोड़ना है, तो यहाँ पे पहले उसको पोलैरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके बाद में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये जो पोलैरिटी यहाँ पे क्रिएट होती है, इट ड्यू टू द इनकमिंग स्पेसीज, मतलब उसके साथ में जो रिएजेंट वहां पे रिएक्ट होने वाला है, या कोई अटैकिंग स्पीसीज जो होती है, तो वो किस तरह से होती है, तो उसके बेस पे इस मॉलिक्यूल में जो है पोलैरिटी हमें बनते हुए दिखाई देती है। बट हम ऐसा कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में पहले कोई पोलैरिटी नहीं थी, बट व्हेन दिस अटैकिंग स्पीसीज अटैक ऑन दिस नॉन पोलर स्पीसीज, है ना, ये जो नॉन पोलर है इसके साथ में जब ये अटैकिंग स्पीसीज कोई भी हो, पॉजिटिव चार्ज वाली हो या नेगेटिव वाली हो, ये जब रिएक्ट होती है तो यहाँ पे हमें कुछ आयन बनते हुए दिखते हैं, है ना। तो ये जब इसमें आयन बनते हुए दिखेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं, तो ये पोलर मॉलिक्यूल वहां पे हमें बनते हुए दिखाई देता है। तो ये जो होता है, ये इफेक्ट जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब polarity created in a non-polar molecule due to the effect of incoming species।
है ना, कोई आने वाली एक स्पेसीज की वजह से उस मॉलिक्यूल में हमें पोलैरिटी क्रिएट होती हुई दिखती है, इस इफेक्ट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये जो इफेक्ट होता है ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। क्योंकि टेम्पररी क्यों है? क्योंकि उस मॉलिक्यूल में नेचुरली वो जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसमें इफेक्ट जो है, जो पोलैरिटी उसमें क्रिएट हो रही है, ये पोलैरिटी आने वाले अटैकिंग स्पेसिस की वजह से बन रही है, इस वजह से इसको हम टेम्पररी कहेंगे, ठीक है। और इसमें जो पोलैरिटी बनेगी फिर वो भी टेम्पररी पोलैरिटी हमें देखने को मिलती है, मतलब रिएक्शन होते टाइम में ही उसमें पोलैरिटी बनेगी, और अगर वहां पे अटैकिंग स्पेसिस नहीं होती है तो वो पोलैरिटी वैसे की मतलब यानी कि नॉन पोलर ही नेचर में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कोई गेस्ट जब हमारे घर पे आता है ना, हम डेली हमारे घर पे जिस तरह से बिहेवियर करते हैं वो नॉर्मल बिहेवियर होता ही है ना। बट जब गेस्ट आते हैं और गेस्ट आने के बाद हमारे बिहेवियर में काफी चेंज हमें दिखाई देता है ना। बहुत अच्छे से हम बिहेवियर वहां पे करते हैं जब कोई गेस्ट आता है तो, है ना। और जैसे ही गेस्ट वापस चले जाते हैं हम हमारे न्यूट्रल पोजीशन में फिर चले आते हैं, फिर से उसी तरह से बिहेव कर देते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब तक वो गेस्ट हमारे घर पे है तब तक हमारे इसमें पोलैरिटी देखने को मिलेंगे, अच्छे से बिहेवियर करते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे ही गेस्ट वापस चले जाएंगे हम फिर से जैसे थे वैसे ही बैक टू पवेलियन आ जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये भी दो तरीके से हो सकता है, एक माइनस इफेक्ट होगा और सेकंड वन प्लस इफेक्ट होगा, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल है AB, है ना, और इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अल्कीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरह से। और इसमें ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे जो दिख रहा है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये इजीली अवेलेबल होते हैं किसी इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसिस को देने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इनकमिंग स्पेसिस ये निगेटिव चार्ज वाली होती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक स्पेसिस होती है ना। दो टाइप की स्पेसिस होती है, हमने देखा है पिछले कुछ स्लाइड में, न्यूक्लियोफाइल होता है और इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज देता है किसी इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसिस को, और इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, तो उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसिस कहेंगे। और जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है तब इस केस में ये जो नेगेटिव चार्ज जो होता है ये चला जाता है इस पाई बॉन्ड के एंटी पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे पाई बॉन्ड हम देखेंगे कि किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं। तो समझो ये ए है, ये मॉलिक्यूल अपना ये, और ये जो है ये बी मॉलिक्यूल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में पहले एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड था और एक जो है ये पाई बॉन्ड भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो ये लैटरल ओवरलैपिंग से बनते हुए हमें दिखाई देता है इस तरह से। तो ये होगा पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल्स, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉन्ड के कोई एक साइड में होंगे या कोई एक साइड में रहेंगे। अगर इस साइड में रहते हैं तो इस साइड में कुछ नहीं होगा, अगर इस साइड में होते हैं तो इस साइड में कुछ नहीं रहेगा, कोई एक साइड में वहां पे हमें बॉन्डिंग देखने को मिलती है, बट हम इसको दोनों साइड पे ऐसे लोब दिखाते हैं। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड में होके यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग होती है तो ये हो जाएगा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। और ये जो सेकंड साइड यहाँ पे होती है उसे हम कहेंगे पाई स्टार, यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो यहाँ पे ये जो वैकेंट होती है ये वाली साइड, तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन ये इसको दिए जाते हैं ये वाली ऑर्बिटल को, ठीक है। तो इस वजह से ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा बी की तरफ, है ना। तो इस वजह से हमें इस तरह से स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें कि निगेटिव चार्ज अब इसमें बन गया है, ठीक है। निगेटिव पार्ट इस मॉलिक्यूल में आ गया है, तो यहाँ पे जो है, और ये सेकंड जो पार्ट होगा ये पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, तो इसमें पोलैरिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इनकमिंग स्पेसीज के इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में आए तो ये हुआ प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक
इफेक्ट, है ना, ये क्या हुआ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो अब सेकंड मॉलिक्यूल में जो है ये स्पेशीज अलग टाइप की है थोड़ी, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक स्पेशीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक स्पेशीज को इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग से इसको दिए जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे जो इफेक्ट होता है तो इसमें पोलैरिटी देखने को मिलती है। तो ये जो है यहाँ पे हम प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये मॉलिक्यूल, तो इसको हम कहेंगे माइनस ई इफेक्ट, यानी कि माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये जो होता है इसे कहेंगे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो हमारी मीटिंग का टाइम जो है एंड होने वाला है। वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और यू विल कम